السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم نریشنز کی بیسک رولز کی طرف جائیں گے۔ آج کے اس لیکچر میں جو بیسک جتنے بھی رولز ہیں ڈائریکٹ سپیچ کو انڈائریکٹ میں چینج کرتے ہوئے جن کو یوز کرنا ہوتا ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ کچھ رولز ہے، اگر ہم ان کو سمجھ کر پڑھیں گے اور ان کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ڈائریکٹ سپیچ کو انڈائریکٹ میں چینج کرنا ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ان رولز کی جانب۔ سب سے پہلے جو بیسک رول ہے وہ یہ یاد رکھے کہ کاما اینڈ انورٹیڈ کاما آر ریمووڈ۔ جو ہم نے پہلے لیکچر میں جن چیزوں کو ڈسکس کیا تھا کہ جو رپورٹڈ اسپیچ ہے وہ انورٹیڈ کاماز میں بند ہوتا ہے، وہ ہمیں جو ہے ڈائریکٹ اسپیچ کو انڈائریکٹ میں چینج کرتے ہوئے وہ سیڈ کے بعد جو ایک کاما ہوتا ہے وہ ہم نے جو ہے چینج کر کے ان کی جگہ پر ہم نے دیٹس لگانا ہوتا ہے، اور باقی جو انورٹیڈ کاما ہے جو اوپر رپورٹڈ اسپیچ کے اوپر ایسے آتے ہیں تو ان کو بھی ہمیں ریموو کرنا ہے، اور ان کے درمیان یعنی دو جب سینٹینسز ہوں گے ان کے درمیان ہم دیٹس لگائیں گے۔ لیکن جو آج کل ماڈرن انگلش میں اکثر دیٹ یوز نہیں کرتے ہیں، تو اٹس مین آپ جو ہے وداؤٹ، اگر آپ ان کو ریموو کر کے کاما اور انورٹیڈ کاما کو ریموو کر کے آپ لوگ دیٹ نہ لگائیں تب بھی آپ کے جو ہے سینٹینسز کریکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دو تین اس کے رول ہو گئے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم، جو کہ بہت امپورٹنٹ رول ہے اور ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کے پروناؤنس کو چینج کرنے کے لیے بہت ہی ہیلپ فل اور یوزفل ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، جس میں اکثر اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں۔ وہ ایک سمپل سا ایک آسان سا فارمولہ ہے جو آپ لوگوں کے لیے میں ایکسپلین کروں گا۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو انورٹیڈ کاما کے اندر ہوتا ہے وہ اس کو رپورٹڈ اسپیچ کہتے ہیں، جو انورٹیڈ کاماز کے باہر ہوتا ہے اس کو رپورٹنگ اسپیچ کہتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو جو وائٹ فونٹ میں نظر آ رہا ہے یو سیڈ ٹو می، یہ رپورٹنگ اسپیچ کہلاتا ہے۔ اسی طرح جو ریڈ کلر میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو وہ رپورٹڈ اسپیچ کہلاتا ہے۔ ابھی جو چینجنگ ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ رپورٹڈ اسپیچ میں کرنا ہوتا ہے، جو انورٹیڈ کاما کے اندر بند ہوتا ہے وہ اصل چینجنگ ہمیں ان کے اندر کرنا ہے، اور جو وائٹ فونٹ میں ہے ان کو ہمیں فی الحال چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے۔ تو رپورٹنگ اسپیچ یہ ہو گیا اور رپورٹڈ اسپیچ یہ ریڈ والا ہو گیا۔ تو ان کے پروناؤنس کو جو ہے ہمیں چینج کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم ڈائریکٹ اسپیچ کو انڈائریکٹ میں چینج کریں گے تو ای شی اٹ کے علاوہ آئے یو دے آئے وی یو یہ بھی ہوتے ہیں، تو ان کو ہمیں چینج کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کو چینج کرنے کے لیے اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ ایس او این یہ ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے۔ ایس اسٹینڈس فار سبجیکٹ، او اسٹینڈس فار آبجیکٹ، این اسٹینڈس فار ناٹ۔ یہ آپ لوگوں کو اوپر نظر آ رہے ہوں گے، یہ ایس کا مطلب ہے سبجیکٹ، یہ او کا مطلب ہوتا ہے آبجیکٹ، اینڈ این کا مطلب ہوتا ہے ناٹ۔ اور یہ ایس او این جو ہے یہ ریلیٹڈ ہے رپورٹنگ اسپیچ سے، یعنی کہ یہ جو آپ لوگوں کو وائٹ فونٹ میں نظر آ رہا ہے یہ ایس او این اس کے لیے ہے۔ اسی طرح یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہے، یہ رپورٹڈ اسپیچ کے متعلق ہے۔ یہاں پہ سامنے لکھا بھی ہوا ہے کہ 1 2 3 رپورٹڈ اسپیچ کے متعلق ہے۔ 1 2 3 سے مراد 1 سے مراد فرسٹ پرسن، 2 سے مراد سیکنڈ پرسن، اینڈ تھرڈ سے مراد تھرڈ پرسن، یعنی سبجیکٹ آبجیکٹ ناٹ فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن، اس سے مراد آپ لوگوں نے یہ لینا ہے۔ آگے ہم اس کو ایکسپلین انشاءاللہ کریں گے ابھی، لیکن اس سے آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ ایس او این رپورٹنگ اسپیچ کے متعلق ہے، وائٹ والے کے متعلق ہے، اور 1 2 3 ریڈ والے کے متعلق ہے۔ ان میں ابھی ہمیں کیسے چینج کرنا ہے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ایس او این جو ہے وہ وائٹ والے کے متعلق ہے، مطلب یہ
और 1 2 3 रिपोर्टेड यानी रेड वाले के मुतालिक है। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट है यानी एक है जो फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी इसमें अगर फर्स्ट पर्सन आएगा ये रेड वाले में, अगर कहीं भी फर्स्ट पर्सन आएगा जो कि आई और वी है फर्स्ट पर्सन, जहाँ पे भी आ जाए तो हमें जो है उसको एस के मुताबिक, यानी हमें जो इसमें वाइट में लिखा हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच, यानी हमें उसके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखकर हमें उसके मुताबिक चेंज करना है। यानी अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो ये सब्जेक्ट को देखकर हमें चेंज करना होगा। इसी तरह अगर वो सेकंड पर्सन होगा, यानी अगर वो यू होगा, सेकंड पर्सन यू होता है, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में रेड वाले में सेकंड पर्सन होगा, यू होगा, तो हमें जो है ऑब्जेक्ट को, हमें जो है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को देखकर उसको चेंज करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे मी है, यानी हमें सेकंड पर्सन को मी के मुताबिक, या कोई और सेंटेंस हो जाएगा तो उसमें ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसके मुताबिक हमें चेंज करना है। इसी तरह फिर रह गया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज्ड क्योंकि इसके ऊपर बराबर एन है, एन मीन्स नॉट। तो थर्ड पर्सन जब भी आ जाए आप लोगों की ये रेड वाले में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होगा इस सेंटेंस में, थर्ड पर्सन जब आ जाएगा तो थर्ड पर्सन को हमें चेंज नहीं करना है। थर्ड पर्सन ई, शी, इट और दे, ये जो है ये चार प्रोनाउंस हैं, इनको थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो ये थर्ड पर्सन जो है चेंज नहीं होते हैं, जिस तरह लिखे हुए होते हैं उनको हमें उसी तरह लिखना होता है। अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। दोबारा से आप लोग ये याद रखें कि फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, और इस तरह थर्ड पर्सन जो है चेंज नहीं होता है। अभी आप लोग देखें यहाँ पे एक सेंटेंस है, he says to me I will come to meet you। ठीक है, he says to me I will come to meet you, आप लोगों को नजर आ रहा है ये डायरेक्ट स्पीच में है। देखिए इसमें इन्वर्टेड कॉमास भी है और इसी तरह जो है ये कॉमा भी है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको चेंज करना है। मैं इसको रेड में करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो हमें यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा ई सेज टू मी। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कॉमा जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा और ये कॉमा, इनको रिमूव करके इनकी जगह पर हमें दैट्स लगाना है। ये नीचे मैंने दैट लगाया है, लेकिन इसको ब्रैकेट में किया इसलिए कि ये लाजमी है, लाजमी नहीं है सॉरी। आप इसको लगा भी सकते हैं, आप इसको हटा भी सकते हैं। तो हमने चेंज करने के लिए ई सेज टू मी उसको तो एज इट इज लिखना होता है, फिर इन कॉमा वगैरह की जगह पर हमें दैट लगाना होता है। ई सेज टू मी दैट। अभी देखिए ये आई है, ठीक है, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में आई आ रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आई ये है फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। तो आई फर्स्ट पर्सन है एंड इट इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। ये जो व्हाइट में नजर आ रहा है आप लोगों को ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो इसका सब्जेक्ट जो है ई है, यानी यहाँ पे हमें आई नजर आ रहा है, आई इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमें यहाँ पे ई है। तो हम आई की जगह पर ई लगाएंगे क्योंकि ये इसके मतलब चेंज हो जाएगा। ई सेज टू मी दैट ई, ठीक है। विल कम टू, ये फिलहाल टेंसेस को हम ऐसे ही रहने देंगे, आगे इसको चेंज करेंगे। ई सेज टू मी दैट ई विल कम टू मीट। अभी यहाँ पे यू है, ठीक है, मैं आप लोगों को जैसे बताया था कि यू सेकंड पर्सन है और सिर्फ यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू, ये सेकंड पर्सन दो लिखा हुआ है, इसके ऊपर ओ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि सेकंड पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है इसमें क्या है, सेंटेंस में मी ऑब्जेक्ट है, यानी अब यहाँ पे यू की जगह पे मी लगाएंगे। यहाँ पे आई की जगह पे ई लगाया क्योंकि फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सेकंड पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारे पास मी है। तो ई सेज टू मी दैट ई विल कम टू
मीट मी। तो इसी तरह जो है डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में आसानी से चेंज कर सकते हैं। इनके प्रोनाउंस को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं अगर हम जो है इस फार्मूले को याद रखें। तो बिल्कुल ये इजी फार्मूला है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत आसानी होगी अगर आप लोग इसको से देखेंगे। इसी तरह यहाँ पे आप लोग एक और सेंटेंस में देखें, he said I say to him she will cook food for you, she will cook food for you। तो इसमें हमें क्या करना है कि he says to him को ऐसे ही he say to him I say to him को ऐसे ही लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा की जगह पर हम दैट लगाएंगे। I say to him, अभी ये she है, मैंने आप लोगों को बताया था कि she, he, she, it और they ये थर्ड पर्सन कहलाते हैं। तो थर्ड पर्सन आप लोगों को नजर आ रहा है, ये तीन के ऊपर एन लिखा हुआ है, मतलब कि थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज्ड। तो शी को हम एज इट इज लिखेंगे, ई अगर आ जाए भी उसको एज इट इज लिखेंगे, शी आ जाए भी उसको एज इट इज इसी तरह लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। दे भी आ जाए, इट भी आ जाए, ये चार चीज़ों को हम चेंज नहीं करना है, तो इसलिए हमने इसको शी को एज इट इज लिखा। विल कुक फूड फॉर यू है, ये यू मैंने बताया था सेकेंड पर्सन है यू। तो सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, टू के ऊपर ओ है, मतलब सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है, आई से टू इम, ये इम ऑब्जेक्ट है। तो यू की जगह पे हम क्या लगाएंगे, यू की जगह पर हम इम लगाएंगे। आई से टू हिम दैट शी विल कुक फूड फॉर हिम। तो ये हो गया हमारा आप लोगों का प्रोनाउंस को चेंज करने का तरीका। अभी जैसे कि एक और भी आप लोग देख सकते हैं, अली सेज आई विल कम टू मीट यू, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अली है, अली को हमने पहले ही यूज किया है तो इसकी जगह प्रोनाउन यूज करेंगे। तो ई यूज किया हमने, अली सेज दैट ई विल कम टू मीट, ये यू है सेकंड पर्सन, ठीक है। और सेकंड पर्सन अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच, आप लोगों को नजर आ रहा है कि अली सेज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ अली सेज है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है इसको कंसीडर करना होगा, हमें इसको सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है किससे बात की जा रही है। अक्सर इसमें जो है मी होता है, अली सेज टू मी होता है, अक्सर इसमें ऑब्जेक्ट अगर ना लिखा हो तो उसको अक्सर मी कंसीडर किया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात इम भी आ सकता है, हर भी आ सकता है। लेकिन जब आप इसमें देखेंगे तो आप लोग इंशाल्लाह समझ आ जाएगा कि अली सेज आई विल कम टू मीट यू। तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे, कंसीडर करेंगे मी को कि अली सेज टू मी, ठीक है। इसको लिखेंगे नहीं लेकिन समझेंगे इसको, मी। तो मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे हमें इसके आखिर में जो यू लिखा हुआ है सेकंड पर्सन, हमें सेकंड पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, लिहाजा हम इसको मी कंसीडर करके यहाँ पे हम इसको मी लगाएंगे कि अली ने मुझसे कहा। तो अक्सर जब कोई आपसे कहता है तो आप वहाँ पे अक्सर उसमें मी जो है इसका ऑब्जेक्ट होता है, तो हम इसको मी कंसीडर करके यहाँ पे लिखेंगे कि अली सेज दैट ही विल कम टू मीट मी। तो आई होप कि आप लोगों को जो प्रोनाउंस को चेंज करने का तरीका है और जो बेसिक रूल्स है, रूल्स ऑफ चेंजिंग द नरेशंस you have got, but if you have any confusion kindly feel free to ask us, inshallah we will try our best to reply you। और असाइनमेंट्स बाकी एक्टिविटीज़ भी आप लोगों को सेंड किए जा रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को मिलते जाएंगे। काइंडली कंप्लीट दैट ऑन टाइम। if you are not registered with us, get yourself registered with us for other activities and for complete course। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये 3 महीने का कोर्स है, इसमें जो है इंशाल्लाह आप लोगों को कंप्लीट ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश, इनकी सबकी प्रैक्टिस आप लोगों को करवाई जाएगी। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह कल बाकी जो हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की बाकी जो डिटेल्स है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।